سبت کے لیے جس میں ہم سب مل کر خدا کی حضوری میں ہم سب نے اس کی ورشپ کی ہے، اس کے نام کو عزت اور جلال دیا۔ آج گلا تھوڑا ٹائٹ ہے کیونکہ پورا ویک ہم نے روحوں کو جیتنے میں گزارا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور بہت سارے نوجوانوں کو گزری رات بھی ہم نے خدا کی محبت میں روتے ہوئے دیکھا، اور کل کا میری ٹیم کے لیے بھی ایک بڑا تجربہ، جو ہم یوتھ میٹنگ کے اندر گئے، وہاں پر خدا نے زندگیوں کے اندر کلام کے وسیلہ سے زبردست کام کیا، اور ینگ بچے جو تھے، ٹین ایج بچے، وہ جب میرے فیس کی طرف دیکھتے تو وہ رونا شروع کر دیتے، اور خدا نے ان کی زندگیوں کے اندر اپنے کلام کو اور اپنے خادموں کے وسیلہ سے ایک نیا کام کیا، اور 15 لوگوں نے اپنا آپ خدا کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور جب ہم رات کو ٹوپ سیدہ کے روڈ کے اوپر جب اپنی گاڑی کے پاس آئے تو 2 اور نئے لڑکے جو ٹین ایج لڑکے تھے وہ بھاگتے ہوئے آئے، اور اس کا والد مجھے کہتا ہے میرا یہ بیٹا طبلہ پلے کرتا ہے۔ تو میں نے کہا توبہ کی ہوئی ہے؟ اس نے کہتے ہیں نہیں کی۔ میں نے کہا ادھر آؤ۔ میں نے کہا آپ نے توبہ کی ہے؟ کہتا ہے باجی آج کے کلام نے مجھے توڑا اور میں نے توبہ کر لی ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی ہمیں اس جگہ پر گواہیاں مل رہی تھی، اور اسی کے ساتھ دوسرا بچہ ہنس رہا تھا، اور وہ کہتا ہے باجی میں نے بھی توبہ کر لیا، میری زندگی خدا کے لیے ہے۔ کھول کے بجاؤ، بڑا زبردست کام ہوا ہے۔ مردے زندہ ہوئے ہیں، گناہ کی حالتوں میں سے نکلے ہیں، خدا نے زندگیوں میں کام کیا ہے۔ اس مذبح پر جو آپ نے دعائیں کی ہیں، آنسو بہائے ہیں، خدا ہمارے ان سفروں کو، خدا ہماری خدمت کی حدود کو بڑھا رہا ہے، اور زندگیوں کے اندر زبردست کام کر رہا ہے۔ اور آپ سب کے لیے ایک گڈ نیوز اور ہے، خدا نے ہمیں اسپرچولی اس سال کے اندر بہت بلیس کیا۔ ہم نے مختلف مذہبوں پر جا کر خدمت کی، اور 5 ایسے ایریے جہاں پر خدا نے ایونجیلیکل ڈسائپلشپ چرچ منسٹری کے پینل سے ایونجیلیکل کام کیا، بشارتی کام کے 5 سے 6 مذبے ہم لگا چکے ہیں، جہاں پر 8-8 10-10 خاندان جڑ چکے ہیں، اور یہ ہوم چرچز ڈیولپ ہو گئے۔ ہاللیلویا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ سال ملٹی پلائی بلیسنگ کا سال ہوگا، اور پرسوں جب ہم ٹھنڈا پانی میں تھے وہاں پر 8 نوجوانوں نے اپنی زندگیاں خدا کو دی۔ اور خدا زندگیوں اور لاکھوں کے اندر کام کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اسی کے ساتھ خدا نے گورنمنٹ سطح پر، یہ مجھے دیجیے گا پیپر، جس کے لیے میں گواہی دینا زیادہ ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ ہم اپنی قوم کے لیے بھی کھڑے ہیں، اور روحانی، سماجی اور قومی سطح پر بھی جو کام ہمیں کرنے ضروری ہیں، اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں خدا اپنے وعدے کے مطابق اس چرچ کے اندر لا رہا ہے۔ اب اپنی قوم کے لیے درد رکھتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ رسمی چرچ نہیں ہوگا، یہاں پر ہم پریکٹیکل میں کام کریں گے، کیونکہ کرسچن لائف از پریکٹیکل لائف۔ ہم صرف کلام سنانے والے نہیں ہیں، ہم کلام کو اپنی زندگیوں میں پورا ہوتا دیکھنے والوں میں سے ہیں، کہ خدا بولتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے۔ میں یہ گواہی دینا ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ خدا نے ہمیں بڑھایا ہے، اور جب خدا ہمیں بڑھائے، خدا ہمیں برکت دے، چاہے روحانی طور پر، چاہے فائنینشلی، چاہے سماجی طور پر، یا گورنمنٹ سطح پر، خدا جیسے بھی ہمیں بلیس کرے، ہمیں اس گواہی کو شیئر کرنا چاہیے۔ آمین۔ اور آپ سب کے لیے یہ گڈ نیوز ہے کہ نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل، گورنمنٹ آف پاکستان اسلام آباد سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور اس کے اندر خدا نے یہ ہمیں برکت دی ہے کہ انہوں نے مجھے نامزد کیا، اور اس کے اندر انہوں نے
जॉइंट सेक्रेटरी पूरे डिस्ट्रिक्ट जो है, हमारी जो पूरा ज़िला है, इसके अंदर उन्होंने मुझे जॉइंट सेक्रेटरी की सीट दी है, और ये सारा जलाल खुदा के नाम से। और इस सीट के साथ अब हम और ज़्यादा ज़बरदस्त काम करेंगे। गवर्नमेंट सतह पर हम रूहानी तौर पर जिंदगियों को जीत रहे हैं, मगर हम अपनी कौम के लिए, उनके फैसलों के लिए, उनके इंसाफ के लिए, पीस के लिए हम हुकूमत के साथ मिलकर हम इस काम को इंटरनेशनली भी और नेशनली भी हम इसको सरअंजाम देंगे। आमीन। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली। साल मल्टीप्लाई ब्लेसिंग का साल, हालेलुया। ये साल मल्टीप्लाई ब्लेसिंग का साल है। गो के ये पेपर गवर्नमेंट की तरफ से है, मगर मुझे ये बताएं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से है, मगर इसके अंदर फेवर आसमानों के खुदा की है, जो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। और जब बादशाहों का बादशाह हमारे साथ होता है तो हर जगह पर कामयाबी हमारे कदम चूमती है। आमीन। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया। लोग एमएनए के पीछे, वजीरों के पीछे भागते हैं। मैं यहाँ पर गवाही देना चाहती हूँ कि अभी इन फ्यूचर हम बच्चों की तालीम पर वर्क करेंगे, और खुदा ने हमें अच्छे जो टीम वर्कर दिए हैं, पढ़े लिखे लोग दिए हैं, वो इस काम में हमारे साथ खड़े होंगे, और गवर्नमेंट लेवल पर हम इसी चर्च के 4th फ्लोर पर बच्चों के लिए तालीमी तौर पर दरवाज़ा खोलेंगे, और बच्चों की फीसिस नहीं होंगी, बुक्स भी हम गवर्नमेंट की तरफ से लेंगे, और अपने बच्चों की ज़िंदगी के अंदर तालीमी तौर पर भी हम काम करेंगे। आमीन। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि ये सब फेवर, ये हमारे ज़ोर से नहीं, ना हमारी कुव्वत से है, ना हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसके वसीला से है, बल्कि ये सारी बरकतें खुदावंद के फजल से हैं। ये उसके फजल से है, ये उसकी मोहब्बत में है, ये उसकी शफकत में है। क्योंकि कलाम में लिखा है, यूहन्ना की अंजील में, आदमी अपने आप से कुछ नहीं पा सकता जब तक आसमानों पर से खुदा जारी न करे। आमीन। और ये सारी बरकतें कौन दे रहा है? मैं इसके लिए मैं नहीं गई किसी के पास। और जो स्कूल हमने शुरू करना, उसकी गवाही छोटी सी दे दूं। आप सब जानते हैं, हमारे मिनॉरिटी के जो सदर हैं जबरान गिल भाई जो हैं, खुदा ने उनके दिल में 1 माह से ये प्रोजेक्ट उनके पास आया, और उन्होंने अभी तक मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन काफ़ी स्कूल्स का आगाज़ किया। और अब की बार जब उनके पास मसीही कौम के लिए कोटा आया, तो वो कहते हैं 1 महीने से मैं वेट कर रहा था कि मैं बहन से जाके मिलूं, क्योंकि उनके पास मेरा नंबर नहीं था। और 1-2 खादम से उन्होंने राब्ता करके, मैं किसी प्रोग्राम में गई, वहाँ पर पीछे भागते हुए आए, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे ज़रूरी मीटिंग करना चाहता हूँ। और मैंने उनको कहा जी ज़रूर, आप आ जाइएगा चर्च में। कहते हैं मैं आना चाहता हूँ, मैं आपको बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि आप खुदा की खादम हैं, और मैं रिस्पेक्टली आपके पास आकर इस प्रोजेक्ट को शेयर करूँगा। मैंने उनको कहा आप ज़रूर आएँ। और जब वो आए तो उन्होंने ये गवाही दी। उन्होंने कहा 4 चर्चिज़ ने हमें अप्रोच किया कि ये कोटा हमें दे दें, ये स्कूल हमें दे दें। कहते हैं मैंने उनको साफ कहा कि मेरे दिल में खुदा ने रखा कि मैं उस चर्च में जाऊं, और ये बरकत उनके लिए है। मैंने कहा था आप वफादारी से चल के देखें, आप अपनी बरकतों को गिन नहीं सकेंगे। हालेलुया। आप सब जानते हैं, गुज़श्ता दिनों सिस्टर आसिया नासिया भी यहाँ पर आई। आसिया नासिर जो MNA हमारी कोयटा से बिलोंग करती हैं, उन्होंने 3 से 4 बार मुझे बुलाया, और उन्होंने भी अपनी जो खिदमात है उनके अंदर हमें शामिल किया, और खुदावंद के फजल से हम उनकी कैबिनेट में गए। और अभी जो पाकिस्तान वोमेंस अलायंस एवेंजेलिकल मिनिस्ट्री है, उसका आगाज़ हुआ है, और खुदावंद के फजल से हमने उसमें भी मेंबरशिप ले ली है। ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी लीडर्स हैं मसीही कौम के, जो बहनें हैं पूरे पाकिस्तान में से, उसका हिस्सा हैं,
और खुदावन के फजल से ये कौंसल के अंदर भी और गवर्नमेंट के अंदर भी और मुख्तलिफ इदारों के अंदर खुदा हमें खड़ा कर रहा है ताकि हम अपनी कौम के लिए और बेहतर से बेहतर काम कर सकें। आमीन। और ये ओहदा मिलना, मैं समझती हूँ, मैं एक दिन खड़ी थी कमर्शियल में, इस सौदे को मिलने से पहले 1 वीक की बात है, और मैं देख रही थी एक गवर्नमेंट की नंबर प्लेट एक ना गाड़ी के ऊपर थी, और मैं आसमान की तरफ देख के कह रही, मैंने कहा खुदा हमारे ख़ानदान में से ये बरकत किसको तू देगा, क्योंकि आगे हमारे जो मुख्तलिफ ख़ानदान के बच्चे हैं वो अच्छी तालीम को हासिल कर रहे हैं। तो खुदा ने मुझे कहा हल्की सी आवाज़ में, मैं ये तुझे दे सकता हूँ। मैंने कहा खुदा तेरा शुक्र हो। मुझे नहीं पता मेरी तवज्जो उस पर कैसे गई, और अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये भी हक हासिल है कि मैं अपनी गाड़ी के ऊपर गवर्नमेंट की नंबर प्लेट भी लगा सकती हूँ, और हम चर्च पर भी उसको लगा सकते हैं। और ये सारी बरकतें खुदावंद ने जारी की। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो बातों का सच्चा खुदा है और वो सादुकल खोल है। आमीन। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ उठाएंगे। ये बरकत गो के ये नामजद मुझे किया गया, मगर याद रखिएगा मेरी कलीसिया का एक एक बच्चा इसका हकदार है। मेरी कलीसिया का, जो मेरे यस्सु की कलीसिया है, उसका एक एक खानदान इसका हकदार है। और ये इज्जत आपकी है, ये बढ़ोतरी आपकी है, ये बरकत आपकी है, ये बरकत हमारी कौम के लिए है, ये सरफराजी हमारे खुदा की तरफ से हमारी कौम के लिए है। गो के इसके अंदर मेरा नाम लिखा गया, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बरकत मेरे साथ जुड़ी एक एक जिंदगी और ख़ानदान के लिए है, क्योंकि खुदा ने हमें जोड़ा है और खुदा ने हमें कायम किया है ताकि हम ज़मीन पर रहते हुए बहुत सारा फल लाएं और वो फल यीशु मसीह में कायम रह सके। मेहरबान खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इन सारी बरकतों के लिए, खुदावंद इस सारी एक खुदावंद रिस्पेक्ट के लिए जो ज़मीन पर तूने अपनी खादमा जानते हुए, अपनी बेटी जानते हुए खुदावंद जिम्मेदार ठहराया। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए खुदावंद मैं तुझ पर डिपेंड करती हूँ, क्योंकि तू मेरी कुव्वत है, तू मेरा जोर है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, और तू सब रास्तों में, तमाम फैसलों में खुदावंद तू हमारी मदद और रहनुमाई करना। और जिस सीट को तूने हमें दिया है खुदावंद, इस सीट पर रहकर हम पीस को खुदावंद हम और ज़्यादा एक खुदावंद इंसाफ पसंदी की रूह के साथ इस काम को ज़मीन पर पूरा कर सके, और एक खुदावंद बथेरों के लिए हम बरकत, खुशी, शादमानी, आज़ादी, बहाली और एक खुदावंद तेरी मोहब्बत का सबब ठहरे, यीशु के नाम में, आमीन। मजा है? ये छोटी बरकतें हैं, ये गो के दुनिया की नज़र में बड़ी हैं। जॉइंट सेक्रेटरी होना, और वो भी नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल का गवर्नमेंट लेवल पर, ये दुनिया की नज़र में बहुत बड़ी बरकत है, मगर खुदा ने इससे भी बड़ी बरकतें मेरे और आपके लिए रखी। खुदा इससे बढ़कर आपकी आने वाली नस्लों को ब्लेस कर सकता है। अगर हम वफादार हैं तो खुदा वो पहले से वफादार है। हमें ये नहीं कहना पड़ेगा खुदा हमें ये दे। मैं आपको कह रही हूँ 3 ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सतह पर अच्छी पोस्ट पर, अच्छी जगह पर हैं, वो चलकर खुदा के घर में आए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। आमीन। दुनिया के सामने तो है, मगर खुदा के सामने भी ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि जब हमारी गवाही मजबूत है तो खुदा हमारी फेवर में बहुतों को खड़ा कर देता है। आमीन, आमीन। और ये चीज़ें जो इस साल में खुदा ने हमें दी है, हमने तो कभी दूर तक किसके बारे में सोचा नहीं था, मगर जब खुदा दरवाजे खोल रहा है तो हमें पता चल रहा है कि खुदा बहुत बड़ा खुदा है।
आमीन। कल जिन लेडीज के दरमियान में मैं खड़ी थी, उनके करोड़ों के बिजनेस थे, जिनके साथ मैंने एक टेबल पर खाना खाया। दुबई के अंदर डायमंड का कारोबार करने वाली लेडीज, इसके अलावा बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को रन करने वाली, बड़े बड़े बिजनेस को रन करने वाली, जब उनके साथ उस टेबल पर मैं बैठ के गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि आप किस तौर से काम कर रहे हैं, जब तारुफ हो रहा था तो मैंने उनको बताया मैं अपनी कौम के लिए खड़ी हूँ, मैं अपनी कलीसिया के लिए खड़ी हूँ, मैं अपनी आवाम के बच्चों के लिए खड़ी हूँ। और मैंने उनको बताया कि हम कलीसियाई सतह पर वोमेंस के अंदर, यूथ के अंदर, बच्चों के अंदर किस तरह से काम कर रहे हैं। तो वो औरत खड़ी होकर मुझे कहती है हम आपको सल्यूट करते हैं, हमसे ज़्यादा तो आप कुछ कर रही हैं। इज्जत तेरी बढ़ावेगा, इज्जत तेरी बढ़ावेगा, और ये सारी इज्जत, सारा ऑनर खुदा के नाम को है। आमीन। आए हम अपने कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जो टाइटल चल रहा है सब मिलकर बोलेंगे, क्या है? जिन्नी पावर नाल मैं सुनाया उन्नी पावर नाल जवाब नहीं आया। 6-7 माह हो गए इस कलाम को। क्या कलाम है? थोड़ा जब बेहतर हुआ, ऊंची बोले। जी जी आमिर भाई खोल के बोलो। आमीन। ताड़े सारे नालों बहुत ही आवाज थे अमर भाई दी, ताली बजा देना। मेरे माइक नालों भी ज्यादा आवाज है भाई, और ये बहुत जबरदस्त है। खुदावंद ने इनको अपने काम और खिदमत के लिए हमारे साथ खड़ा किया फातिमा विला के अंदर, और भाई वर्शिप करते हैं। खुदावंद इनकी जिंदगी में से होकर जबरदस्त काम कर रहे हैं। आमीन। तो आए हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तू मेरे हजूर चलो। हम जिस पॉइंट पर पहुंचे थे वो था दीनदारी पर बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर क्या बढ़ाते जाओ? मोहब्बत बढ़ाते जाओ। हमने पीछे जो सीखा अब उसको वाइंड अप करते हैं, जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आमीन। दीनदारी पर हमने काफी चीजें सीखी जो यूसुफ की जिंदगी को लेकर, और मुख्तलिफ जो बाइबल के अंदर कैरेक्टर थे उनको सामने मद्देनजर रखते हुए हमने दीनदारी पर बहुत कुछ सीखा, और बहुत सारी जिंदगियों के अंदर खुदा ने काम भी किया है। हम इसकी शुक्रगुजारी करते हैं, मगर इससे ज्यादा आगे वो कहते हैं बरादराना मोहब्बत में क्या करो? बढ़ते जाओ। क्या करो? बढ़ो। यानी कि वो कहते हैं अगर तुमने नेकी करना जान लिया है, अगर तुम ईमान पर चलना शुरू हो गए हो और तुमने ईमान को अपने अंदर रख लिया है और यीशु को कबूल कर लिया है, उस ईमान पर नेकी और नेकी पर कमाल कोशिश करके दीनदारी, और फिर कहते हैं उसके ऊपर तुम परहेजगारी को और सब्र को, और उसके आगे वो कहते हैं कि दीनदारी के काम को जमीन पर क्या करो? पूरा करो। जो हवाला हमने पढ़ा था पत्रस, पहला पत्रस उसका दूसरा पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 5 आयती, बस इसी बात से तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी, और नेकी पर मार्फत, और मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सब्र, और सब्र पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत, और उल्फत पर बरादराना मोहब्बत बढ़ाते जाओ। आमीन। वो कलाम जो हमने पिछले संडे सीखा उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियों में गवाही को देखा, और जो गुजरे वीक्स के अंदर हमने सब्र पर मैसेज सुना। जब हम विजिट्स के दौरान घरों में गए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस कलाम ने हमें, हम गिर चुके थे, फिर से सब्र में खड़ा कर दिया। उनकी मुश्किलें बहुत बड़ी थी, और जब हमने बैठकर उनके साथ काउंसलिंग्स की तो पता चला कि उनकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़े थे, उनके दुख बहुत बड़े थे, मगर खुदा ने सब्र के कलाम को नाजिल करके अपनी बेटियों और बेटों को ताज़ा किया, ईमान में मजबूत किया, और वो खुदा के साथ चलने के लिए और ज़्यादा पुरअज़्म हो गए। याद रखिएगा, जब मजबूरियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं, कोई मजबूर होता है, उस मजबूरियों में रह के वो मजबूत होता है।
हाँ, जब सब्र करना हम सीख जाते हैं तो उन मजबूरियों के तहत हम क्या होना शुरू हो जाते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं, हम जोरावर हो जाते हैं। फिर मुश्किल चाहे जितनी बड़ी हो, मुसीबत जितनी बड़ी हो, हमें लगता है हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। ये ईमान की सिफ्त है, ये सब्र की सिफ्त है कि वो आपको खुदा में और ज्यादा क्या कर देता है, मजबूत कर देता है, जोरावर कर देता है, और उसकी मोहब्बत में और ज्यादा बढ़ाता चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं दीनदारी पर बरादराना उल्फत और उल्फत पर बरादराना मोहब्बत बढ़ाओ, यानी कि अपने आप को और ज्यादा ग्रूमिंग में लेकर जाओ, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। मुश्किलें जितनी भी आए, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें जितनी भी आए, तुम इसमें मजबूती के साथ अपने यीशु पर ईमान रखकर हर कदम उठाते जाओ। वो आपका जोर बनेगा, वो आपकी कुव्वत बनेगा, वो आपको ऐसी हिकमत देगा कि उस सारी मुश्किल में से गुजरने के लिए आप बड़ी तसल्ली के साथ स्टेप्स उठाते जाएंगे और वो आपको सर बुलंद करता चला जाएगा। क्योंकि वो कहता है खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहो तो वो तुम्हें वक्त पर क्या कर देगा। और मैंने कहा था 2024 साल हमारा वक्त है, खुदा इसमें मल्टीप्लाई करेगा। जो क्रिसमस पर बच्चों के संडे स्कूल में मैंने जो हमने प्रोग्राम किया, उसके अंदर मैंने एक मैसेज दिया था मरियम के हवाले से, किसी को याद हो। कल शाम जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो खुदा का रूह मुझे याद दिला रहा था, और मरियम ने कहा कि खुदा ने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर किया और उसने उसको सरफराज किया है। ये कलाम था 2024 के आगाज में, और खुदा ने कहा मैंने पस्त हाली को ख़त्म करके जिंदगी के हर एरिया में तुझे बरकत दे दिया है, और 2024 साल अभी ख़त्म नहीं होगा, तू अपनी बरकतों को गिन नहीं सकेगी। ये जो मैंने शेयर की है, ये बहुत चंद चीज़ें मैंने आपसे शेयर की है। इससे कहीं ज़्यादा मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिन पर हमने वर्कआउट करना है। उसमें हमें आपकी ज़रूरत है, हमें कलीसिया के बुजुर्गों की भी ज़रूरत है, जवानों की भी ज़रूरत है। यहाँ पर आपके आने का मकसद सिर्फ ये नहीं होगा कि आप वर्शिप करें, अपनी खिदमत करें और चले जाए। नो, आपको 7 दिन में इस कलीसिया के साथ खड़े होंगे और हर दिन वो बरकत आपकी जिंदगी का हिस्सा होगी। और जो जो अपना पेश करेगा हम उसको वर्किंग में लेंगे, और यहीं से हम गवर्नमेंट जॉब्स को भी लेंगे। खुदा ने अभी से जारी कर दिया है। अभी हमने सिस्टर नौशीन को एजुकेशन के लिए एज अ प्रिंसिपल, मैंने इसको जो उसने मुझे कागज़ दिए भाई ने, मैंने उस पर इनका नाम दिया, क्योंकि मुझे पता है ये इस काबिल है कि ये इस सारे काम को बड़ी खूबसूरती के साथ और जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगी। और आपको बच्चों के स्कूल के हवाले से सिस्टर सामने आ जाए आप, क्योंकि मैं कलाम के दौरान ये बरकत बताना चाहिए, सिर्फ हवाले नहीं देने चाहिए। जो सी कर रहे हैं खुदा हमारी जिंदगियों में कर रहा है, उसको हमें आगे लेकर बढ़ना है। क्योंकि उसने कहा कि तुम खुदावंद के हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहो तो वो तुम्हें वक्त पर क्या करेगा, सरफराज करेगा। इस काम के लिए सिस्टर जो है वो एजुकेशन को देखेंगी, इसके सारे सिस्टम को, और गवर्नमेंट सतह पर जो भी हमें चीज़ें दरकार होंगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसी माह के अंदर हम स्कूल की ओपनिंग करें, ताकि जो बच्चे घरों में हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट हमने 3 दिन विज़िट किया, जिसमें एक विज़िट मैंने की और बाजी गुलशन ने, और बाकी सारा विज़िट सिस्टर ने और बाजी ने किया। बाजी भी खड़ी हो जाए, इतने सामने आ जाओ सामने, खैर है सामने ले आना चाहिए ना जिन्ना मेहनत की थी। आमीन आमीन। आप ये देखें कि जिनको लगता है कोई कुछ नहीं कर सकता, इस सारे काम में इन्होंने हिस्सा डाला है, सारे विजिट्स करवाए हैं। इनको सामने लाने का मकसद के जो एजुकेशन में है वो इनकरेज हो कि हम आपको ही लेंगे, और जिनको लगता है कि हम किसी काम के नहीं, बाजी नहीं लगता सी कि मैं चर्च कुछ नहीं कर सकती, आज आके इंतजामी काम भी वेख रहे हैं और खुदा की खिदमत च हिस्सा पा के अपनी कौम ने भी विजिट करवा रहे हैं।
एग्जाम्पल देने का मकसद क्या है? ये बात करने का मकसद क्या है? इन दोनों खानदानों को सामने लाने का मकसद क्या है? इन दोनों लेडीज को सामने खड़े करने का मकसद क्या है? कि आप में से हर कोई खुदा का काम करने के लिए अगर पेश करेगा तो खुदा अपनी खिदमत में आपको जिम्मेदार ठहराएगा। जालो में जाना नहीं करते समझ आती गल थे वे हुण सुनियो गल थे वे ए बाजी नालों ज्यादा काबल लोग बैठे ने। मैं इनकी इंसल्ट नहीं कर रही, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। बाजी दे ला, अब इनसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे बैठे होंगे, इनसे ज्यादा समझदार बैठे होंगे, कई मुझसे भी ज्यादा समझदार हिकमत वाले लोग पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे। मैं अंडर मैट्रिक का फिर भी खुदा ने एडी वड्डी सीट दे दी है। तुसी ते पढ़े लिखे जे ऐ सुनियो जरा अपने आप नूं आईने च वेखो, तुसी मेरे नालों ज्यादा पढ़े लिखे जे। हुण ये ना कि वो तुहाडी खिदमत है, भाई मैं भी मसीही हूँ, आप भी मसीही हैं, आपने भी यीशु को कबूल किया, मैंने भी यीशु को कबूल किया है। बात सिर्फ यहाँ पर ये है कि हम अपना पेश करते हैं। बात क्या है? जब खुदा ने अब्राहम को कहा तू मेरे हजूर चल लो, तो नहीं तो नहीं कि अपनी मर्जी नाल चलते कामिल हो हैं, या तू चेंज करेगा मैं तेरे नाल खलो जाऊंगा। भाई 5 दफा लोग खुदा का काम खुदा के बगैर करना चाहते हैं, वो भी नाकाम रहते हैं, और कुछ लोग खुदा को कबूल करके भी, सुनिएगा, 2 कैटेगरी के लोग, कुछ लोग खुदा को कबूल भी करते हैं, खुदा ने उनको स्पिरिचुअली ब्लेस भी किया होता है, मगर खिदमत उनकी सॉरी टू से क्या है, क्या है, मगर जो अपने आप को 1% भी पेश करते हैं वो 0 के साथ उनको 10% ब्लेस करता है। और अगर 10% में वो वफादार रहते हैं तो खुदा 1 0 को बढ़ाकर उनको 100% कर देता है। हालेलुया। और अगर वो 100% खुदा के साथ ठीक चलते हैं तो 1 0 बढ़ाकर खुदा उनको 1000% और ज्यादा ब्लेस कर देता है। और अगर वो 1000% खुदा के साथ वफादार हैं तो खुदा उनको 1 0 बढ़ाकर 4 0 बढ़ाकर खुदा उनको लाखों में कर देता है। तो अगे जो लखन तुसी आ गए हैं, सुनिएगा सुनिएगा, अभी रुकना नहीं है, क्योंकि ताड़ी 0 वाली सोच है, मैंने थोड़ा उत्ते लिया। अगर हम 0 में हैं तो खुदा 1% हम पेश करें, खुदा 10% कर देता है। अगर हम 10% पेश करें, खुदा 0 को लगाकर हमें 100% ले जाता है। अगर हम 100% पेश करते हैं वो 1000 में ले जाता है। अगर हम 1000 में जाते हैं खुदा हमें करोड़ में ले जाता है। और मैंने इस साल में 1.5 करोड़ में काम किए हैं, जो प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, मैंने लागत का हिसाब लगाया। खुदावंद दे फजल नाल लो भी उठ जाना। 2024 में क्या सारा कर्ज यीशु के नाम में, आमीन। इसमें हमने मुश्किल भी देखी, इंसल्ट भी देखी, मगर हमने खुदा की फेवर भी देखी है, आमीन। ते खुदा दा 0 कभी भी खत्म नहीं जो होना, ऐ याद रखिए। हाँ, करोड़ में से अरब में जाएगा, खरब में जाएगा, पता नहीं किधर से किधर ले जाएगा। हालेलुया। मगर बात है वफादारी की, बात है दसन का मकसद है कि ये 2 जो पर्सनैलिटी मैंने आपको दिखाई है ये भी आप ही में से है, और जो यहाँ पर खड़ी है ये भी आप ही में से है। मगर बात क्या है, खुदा के साथ चलना तो शुरू करें, हाँ, उसके वादों पर यकीन तो रखें, उसकी मोहब्बत में बढ़ना तो सीखें। भाई अगर महबूब मोहब्बत में जान दे देता है तो यीशु ने तो अपना सब कुछ ही हमें दे दिया है, आमीन। अगर जमीनी माँ मोहब्बत करती है और उसको अपने बच्चे के लिए कुछ बेचना पड़ जाए, देना पड़ जाए, किसी भी हद तक जाना पड़ जाए तो वो जाती है। अगर शोहर को बीवी के लिए करना पड़ जाए तो वो सब कुछ करता है। और अगर ज़मीनी बात है, ज़मीन पर रहते हुए हम जिन लोगों के करीब होते हैं, ज़रूरी नहीं कि लड़की लड़के की लव स्टोरी हो, अपना माइंड ज़रा फ्रेश रख के बैठेंगे। ये मोहब्बत बहन भाइयों की भी हो सकती है, ये मोहब्बत आपके खूनी रिश्तों में भी हो सकती है,
और जब हमें किसी शख्सियत से मोहब्बत होती है तो हम खुले दिल से हर एक चीज उसको क्या कर देते हैं। जरा वेख्यो तो साडा लेवल की असी सब कुछ पेश कर देने, क्योंकि हमें क्या होती है उस शख्सियत से, हमें अपनी चीजें देना मुश्किल लगती है, मगर अपने मनपसंद शख्स को हम अपनी कीमती से कीमती चीज भी देने में कोई भी रुकावट महसूस नहीं करते। हम खुले दिल से पेश कर देते हैं कि ये लो, ये आपके लिए है। तो अगर आपको यीशु से मोहब्बत है तो आपने खुले दिल से कितना पेश किया। आपने तो सर्कल बनाए हुए हैं, इन्ने हिस्से च असीं खुदा नाल चल सकने हैं ते बाकी सारे हिस्से खाली। हाँ, हम इतना चल सकते हैं भाई। जो लोग पूरे का पूरा अपना आप उसको देते हैं वो उनके लिए बड़े से बड़े काम करता है, क्योंकि वो कहता है मसीही मोहब्बत को बड़ा ते मसीह दे नाल मोहब्बत होएगी, कोई गहरी रिफाकत होएगी ते अगे कोई गहरे काम नहीं होंगे। सुनिएगा, अगर आपकी जिंदगी में बड़ी बरकतें नाजिल हो रही हैं, इस पर खुश ना हो और इस पर उदास भी ना हो, इसको सेलिब्रेट करें, मगर याद रखें खुदा इससे भी बढ़कर आपके लिए करना चाहता है। आमीन। खुदा इससे भी कुछ बड़ा आपके लिए करना चाहता है, क्योंकि उसने अपने बेटे को भी देने में दरेग, उसने अपनी गोद को खाली कर लिया और खुदा की सबसे कीमती चीज उसका बेटा था। उसने मेरी और आपकी निजात के लिए भी उसको ज़मीन पर भेज दिया और उसको जलाल के तख्त पर से नीचे ज़मीन पर भेजकर मेरे और आपके लिए एक बड़ी मोहब्बत का ऐलान किया है। आमीन। उसने एक बड़ी मोहब्बत को हम पर जाहिर किया है। और जब हम गुनाहगार ही थे, हम ना चाहे जाने के काबिल थे, उस वक्त में खुदा ने हमें लिया, अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा और उसकी मोहब्बत हम पर जाहिर की। और उसने मोहब्बत में खुद को पेश करके अज़ियतनाक मौत को लिया, अपने लहू के एक एक कतरे को उसने बहा दिया। उसने अपने बदन के तमाम अज़ा को मेरी और आपकी निजात के लिए पेश कर दिया। उसने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया और सलीब पर उस लानती मौत को लेकर उसने अपने बदन के ऊपर सारे जहानों का बोझ लेकर, गुनाह लेकर, शर्मिंदगियां लेकर मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ है। ये मोहब्बत नहीं, मोहब्बत की इंतहा उसने की है। और मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर मेरे और आपके लिए एक फतह का बड़ा ऐलान उसने किया है। हमें मोहब्बत में पेश करना कुछ मुश्किल नहीं लगता दुनिया के अंदर, मगर खुदा की मोहब्बत में खुद को पेश करने में हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हम अक्सर अपने ज़िंदगी के फैसलों में फंसे रहते हैं। हम इरादा करते हैं हम करेंगे, मगर कुछ चीज़ें फिर से हमारी ज़िंदगी में रुकावटों को ले आती हैं। याद रखिएगा, जो लोग रुकावटों का, मुश्किलों का सामना करके अपनी मोहब्बत को मसीह के साथ कायम रखते हैं, खुदा उनके लिए ज़मीन पर बड़े बड़े दरवाज़ों को खोलता है और उनकी नस्लों पर भी उसकी बरकत जारी रहती है। यहाँ पर वो कहते हैं दीनदारी पर बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर क्या करो, मोहब्बत बढ़ाओ। सिर्फ मोहब्बत करो ही ना, ए ना कहो खुदा मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत को अपनी जिंदगियों में बढ़ने दे। कईयों की तो मोहब्बत ही वो क्या कहते हैं, छोटी जात वालों को ਜਿਹੜੇ छोटे काते होंगे की कहते हैं वो, कईयां दी तो मोहब्बत ही होनी है, तो कईयां दी बड़ी डरावनी भी है। मोहब्बत का दावा तो करते हैं मगर मोहब्बत कईयां दी मोड़ी मोहब्बत। और साडे बच्चों का कद ना वधे, साडे बच्चों का कद ना वधे, जरा इधर वेखो, कद ना वधे असीं फिक्र च चले जाते। 1 साल 2 साल 3 साल अगर हाइट ना वधे तो की शुरू हो जाती है, टेंशन शुरू हो जाती है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। ये मैं पिछले साल ही वेखण दिया से एडे दा एडा ही सी, पिछले साल ही मैनू वेख्या तो एडी दी एडी हुई सी हैं। तो फिर विचों रिश्तेदार भी कई जुगती होंदे ने, कहते ने इनू खवाया पियाया करो कोई थोड़ा वधे फुले हैं।
लेकिन उधर के हाइट उतनी की उतनी, स्पिरिचुअली हमारे लेवल्स क्या है। वो यहाँ पर कह रहे दीनदारी पर मोहब्बत, आगे बढ़ने वाला कोई काम करो, आगे बढ़ने वाला कोई काम करे। मैं आपको इनकरेज कर रही हूँ। आप में से कितने हैं जिनको पता है कि 5 साल पहले मेरी जिंदगी में क्या कुछ था? बहुत सारे लोगों को पता है, और कई लोग बचपन से मुझे जानते हैं, उनको पता है हमारी ख़ानदानियत क्या है, हमारे ख़ानदान में कौन कौन सी बरकतें हैं, हमारे ख़ानदानों में खुदा ने किस तरह से हमें ब्लेस किया है, ये सब जानते हैं। और अगर आप पिछले 5 सालों की निस्बत आप मुझे अभी चेक करें तो खुदा ने मुझे स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरह से खुदा ने मुझे बढ़ाया है। आमीन। आप अपना अंदाजा लगाएं। मैं यहाँ पर कोई शेखी नहीं मार रही या मगरूरी नहीं दिखा रही, मैं आपको आपकी जगह पर ला रही हूँ। मैं आपकी मदद कर रही हूँ कि आप जिन हालतों में उसमें से निकलें, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। अगर आज हम सोचेंगे नहीं, हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो कल को हमारे ख़ानदान उन्हीं जगहों पर स्टिल रहेंगे। आपको स्टेप्स उठाने हैं, मसीहत में बढ़ें, उसकी मोहब्बत में बढ़ें, उसकी पहचान में बढ़ें। जब आप उसमें बढ़ेंगे तो ज़मीन पर सब चीज़ों में वो आपको बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि पहले तुम मेरी रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सब चीज़ें तुम्हें मैं दे दूँगा। प्रॉब्लम ये कि हम चीज़ों के पीछे भागते हैं। मैंने आपको आते ही ये गवाही दी, मैं इन 3 लीडर्स के पास नहीं गई, ना मैंने इनको कोई कॉल की है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने 3 रोज़ा मसबा ज़रूर लगाया है, और मैं देख रही थी 3 ही लीडर खुदा ने भेजे हैं जो मैं हर एरिया में ब्लेस कर देंगे। आस्तर खड़ी हुई अपनी कौम के लिए, खुदा ने उसको सरफराज किया। दबूरा खड़ी हुई और उसने कहा मैं अपनी कौम के लिए माँ होकर। हमने यहाँ पर सीखा दबूरा के बारे में, उसके पास 5 मिनिस्ट्रीज थी, और दबूरा के बारे में बहुत वसी कलाम हमने सुना। एस्टर के बारे में हमने बहुत वसी कलाम सुना, और उसके अंदर जब उन्होंने अपनी खिदमतों को बोला, खुदा ने उनकी लाइफ के अंदर उसी एरियाज के अंदर उनको बढ़ाया। और यहाँ खड़े हुए जब मैंने दबूरा पर प्रीच किया था तो मैंने कहा था कि आने वाले वक्तों में ये 5 खिदमतें यहाँ से ऑपरेट होंगी, और उनमें से एक बड़ी खिदमत गवर्नमेंट सतह पर आ गई है। अब खाना जरूरी है, ये वखाना जरूरी है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ रेंज ਚ ਆਣਗੇ मेरे हाथ ਚ। आमीन। क्योंकि वो कहता है मैंने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है वो आएंगे तो एक ही रास्ते से, मगर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है 2024 में मेरी बड़ी मुखालफत हुई, और गवर्नमेंट सतह पर हुई, कुछ झूठे केस भी बने मेरे पे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ पता ही नहीं, झूठे केस भी बने जे मेरे पे। मैं अदालत में जाती हूँ, सच्चे केस हमने अपने चर्च का लगाया, मगर उसके साथ झूठे भी उठ गए, तो झूठियां दे मुंह बंद करने लिए खुदा ने हमें सीट दे दी है। झूठियां दे मुंह बंद करांगे मैनू खुदा ने खड़ा ही तां कीता कि जेड़ी साडी कौम दे बिगड़े लोग ने उन्हां नूं ठीक कीता जाए। हालेलुया। और जेड़े गुनाह दे विच ने उन्हां नूं भी कढिया जाए, ते जेड़े झूठ फरेब करदे ने उन्हां नूं फड़ के ना सही वाला रगड़ा लाया जाए। आमीन। और ये बरकत है, ये कोई हम बड़े कोई फख्र की बात नहीं है कि मैं फख्र कर रही हूँ या मैं बहुत बड़ी कह रही हूँ कि खुदा ने हमें कर दिया है। भाई बड़ा हमारा खुदा है जो हमें बढ़ाता भी और बरकत भी देता है। आमीन। असी इत्थे 3 दिन का मसबा ला रहे हैं, रोण पिटन डे कि जी विगड़ी हुई साडी कौम है वो सही हो जाए। असी इत्थे दुआवां करने खुदावन अदालतों में जो झूठे केसेस हैं उनको क्या करते। असी इत्थे 5 तो लैके राती 1 बजे तक इत्थे इन्हां लोकां लई खुदा दा मसबा लगाया है, जिदे ते असीं आंसू बहा रहे हैं कि खुदावन झूठे केसेस अदालतों में से जाते रहे।
हमारी मसीही कौम की बेटियों बेटों के ऊपर से ये लानत खत्म हो जाए। खुदावन तू हमारी बेटियों और बेटों को इन झूठे केसेस में से बाहर निकाल। तू एक खुदावन जजेस के दिल को ले, तू वकला के दिल को ले, तू खुदावन सच्चाई पर उनको खड़ा कर। और जब हम दुआ कर रहे हैं तो कुछ झूठे मामला मुझ पे भी बन गए। मैं क्या हूं मजा आएगा शैतान नूं नसाण दा। हालेलुया। धमकियां मैनू बड़ियां मिलियां, कोई कहण डਿਆ ਸੀ ਇਹ केस करन लगे हैं, कोई कह रहा मैनू ਇਹ करन लगे हैं। मैं क्या लगदा हुण खुदा कुछ नवा ही करन लगा। हालेलुया हालेलुया। मुझे ऊपर से आवाज आई कि जितनी बड़ी तेरी मुखालफत है अब मैं उतनी बड़ी बरकत तुझे देने जा रहा हूं। जिंदगी के किसी भी मामले में तुझे इंसल्ट नहीं देखनी पड़ेगी। ये किसने कहा? ये मेरे जमीनी किसी रिश्ते ने नहीं किया, मेरे जमीनी बाप ने नहीं कहा, मेरे आसमानी बाप ने कहा कि जिंदगी के किसी भी हिस्से में तुझे इंसल्ट नहीं देखनी पड़ेगी। हालेलुया। और वो वादों का सच्चा खुदा है, मगर उसकी मोहब्बत में कायम रहना है, उसकी मोहब्बत में बढ़ना है, उसकी मोहब्बत में बथेरों को उसके पास लाना है, बथेरों के पास उसकी मोहब्बत को लेकर जाना है और उसी की मोहब्बत में रहते हुए ज़मीन पर उसके काम को सरअंजाम देना है। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हमने रूहों की निजात और अपनी कौम के लिए ज़बरदस्त तरीके से काम करना है। जितने साल खुदा ने मुकर्रर किए हैं उनके लिए शुक्रगुजारी, और जो गुजार चुके उनके लिए भी शुक्रगुजारी, और जो अब हम मल्टीप्लाई होकर गुजारेंगे और अगले साल को हम एंजॉय करेंगे, क्योंकि अगले साल में हमारे चर्च की 5वीं बर्थडे होगी और उसको भी हम सही वाला अरूज पर हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। मेरे पास मैं कल गाड़ी में बैठे हुए बात कर रही थी तो वो सारे मेरे कज़न अपनी अपनी जॉब की बात कर रहे। किसी ने कहा मुझे 65,000 मिला, किसी ने मुझे कहा मुझे इतने मिले। तो चुप करके ना सारे हसन लग पे कहते ने इन्होंने भी पूछ लो। मैं क्या मेरे फिगर नाल 0 होर ला दो। हालेलुया। मैंने कहा मुझे 2 माह के अंदर 15 लाख मिला, मगर वो मेरे हाथ में और मेरे हाथों में से आगे भी चला गया। आमीन। मैं क्या तुसी महीने की 50,000 लेंदे जे, मैनू तो 2 महीनों के विच 15 लाख मिले, जिन्ना दे मैं देने ने वो सुन के आ जाते। तो मैं इसलिए दस रही हूँ कि मैं अगे दे दिते वो मैं अगे, क्योंकि उसने कहा बरादराना मोहब्बत ते पैसा भी अगे बताओ, इनू कोल ना रखो, है ही जान वास्ते। हालेलुया। तो हम मसीह की मोहब्बत में अपने आप को पेश करते हैं। अगर हम फाइनेंशियली भी रुपए पैसे का बीज बोना शुरू करेंगे तो खुदा हमें उसमें भी बरकत देना शुरू करेगा। ये बात बरकत की है। मैंने आपको कहा कि मुझे गाड़ी में उन्होंने छेड़ा, मेरी बहन ने भी और मेरे कजन्स जो थे वो कहते ने सानू इन्ने मिले, सानू इन्ने मिले। तो मैनू कहते ने तुसी दसो। मैं क्या तुसी हिसाब लाओ। कहते ने हो सकता है 5। मैं क्या उत्ते जाओ। कहते ने 8। मैं क्या होर उत्ते जाओ। कोई कहता 10। मैं क्या नहीं उत्ते होर जाओ। वो कहते ने किन्ना कुत्ते जाना है। मैं क्या हुण तुसी किन्ना शुरू करो, खुदा इन्ना ही उत्ते खड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। तो जब हम खुदा के लिए देना जान जाते हैं, खुदा भी हमें दिल खोल कर वो बरकत देना चाहता है। आमीन। मैंने आज तक कभी प्रीच नहीं किया इतना फाइनेंस पर, क्योंकि मैं बीज देने वालों में से हूँ। लेकिन खुदा ने कहा तू बरकत पा रही है, तू लाखों में मल्टीप्लाई होके जा रही है, अपनी कलीसिया को भी बीज बोने का भेद दे। मैं दसिया सी पिछली बारी, बीज जब तक हमारे हाथ में रहेगा वो फलेगा। इत्थे तुसी टेबल ते रख दो, फलेगा। भाई कलाम में लिखा है कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिर के मर नहीं जाता वो फल। जैसे ये फलों के बारे च जान रहे हैं। हाँ, सबर का उम्दा फल ईमानदार की, ईमानदार की उम्दा फल ईमानदार की। तो ये फल है। बीज हाथ च रहा ने तुहानू कोई फायदा नहीं देना। भाई अपना बीज खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा को दे दे, वो आपके बीज को बढ़ाएगा और तनावर दरख्त कर देगा।
इसमें से दूसरे लोग शेर होंगे। याद रखिएगा, इसमें से दूसरे लोग शेर होंगे। वो इसकी छांव में आकर बैठेंगे, वो यहाँ पर सुकूनत महसूस करेंगे, वो आपके ऊपर लगे हुए फलों को देखकर खुशी और शादमानी को महसूस करेंगे। वो आपके साथ इन फलों में शरीक हो जाएंगे और आपको खुदा बढ़ाता ही चला जाएगा। आमीन। ते जे बीज हाथ च रखिया, कईयां ने ते खब्बे पासे रखिया हुंदा, कईयां ने उतली जेब च रखिया हुंदा, दिल दे बड़े करीब। किन्नू रखिया हुंदा? बीज, पैसे। हाँ, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे चाहिए, मेरे पास है, खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने मुझे बहुत दिए हैं और मैं अभी भी बहुत सारे देने वालों में से हूँ। मगर बात है आपके बढ़ने की, कि आप कैसे बढ़ सकते हैं। अगर लीडर ये ना सिखाए, खुद बढ़ता जाए, तो ये भी सिखाती है। हाँ, मैंने देना जाना है। आप सब जानते हैं हमने कितने कानून बनाए जो मुख्तलिफ चर्चिस के लोग देख के हैरान है। कोई नवा बंदा आंदा साढ़े चर्च हैरान हो जाता है, कहता है इतनी अच्छी मैनेजमेंट। और फिर सबसे बड़ी बात उनको लगती है ओ टोकरी। मैं कह साढ़े चर्च च पैसे दी वैल्यू पिछे में, और स्टेज मेरे खुदा दी हजूरी लई और ओदे जलाल लई और ओदे पाकरू लई, ओदे कलाम लई, ओदी प्रस्तिश लई, ओदी हमद लई, ओदे हजूर झुकन लई, ओदे करीब आन लई है। स्टेज पर टोकरी नहीं रखनी। हमारे चर्च में पैसे की वैल्यू पीछे है। ये मस्बा खुदा का है, उसके कलाम का है, उसके मौजज़ात का है, खादमों का है, खिदमत गुजारों का है, प्रीचरों का है, हिलरों का है, उस्तादों का है, रसूलों का है, नबियों का है। इस मस्बा पर ये बढ़ोतरी होगी। खुदा नो नेम पे ऑपरेट करेगा और यहाँ से लोग बरकत पाएंगे। ये जो खिदमत गुजारों पर दब है ना, कि ये भी पैसे ली खिदमत कर रहे हैं, जेड़े ये कहते ना पैसे ली खिदमत कर रहे हैं, ते साडी दाल रोटी ये वे। मैं तुहानू दसना चाहनी हाँ, साडा खाना भी है वे, और खुदा ने शुरू से हमें अच्छा दिया है। हम अच्छा पहनने वाले, अच्छा खाने वाले, और खुदावन के फसल से खुदा ने हमारे जितने भी खानदान के लोग हैं, खुदा ने उनको फाइनेंशियली ब्लेस रखा है। वो मांगते नहीं है। आमीन। वो मांगते नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें ये बरकत दी है। हम पैसे के लिए कलाम नहीं सुनाते, और आज तक किसी भी मस्बा पर जाकर मैंने पैसे लेके कलाम, मुझे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने बुलाया। गुजरी रात भी हम जिस जगह पर थे, उस नौजवान के ऊपर कोई केस बना, उसको जेल में डाल दिया। उसने वहाँ पर तौबा की और वहीं से उसने अपना खुदा को दिया, और उसके बाद आज वो यूथ लीडर और बड़े बड़े प्रोग्राम्स को करवा रहा है। जब उसने मुझे कॉल दी, कहते सिस्टर आपने आना है तो मुझे बताएं, आप खुल के मेरे साथ बात करें। मैं कहा भाई तू खुल के कर। कहता है आप मुझे बताएं आप कितने लोग आएंगे। मैंने कहा जितने आप कहेंगे। कहता आप शुक्रगुजारी क्या लेंगे। मैं कहा मैं शुक्रगुजारी करनी होती है, लेती नहीं होती। मैं कहा शुक्रगुजारी खुदा की है, कोई इंसान शुक्रगुजारी के लायक नहीं है। अगर कोई शुक्रगुजारी के लायक है तो वो खुदा की साथ है। आपने उसके नाम में जो बीज बोए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। हमने मुफ्त पाया और हम मुफ्त आकर सुना कर जाएंगे। इसको पैसों पर नहीं सुनाते। हम खुद बीज बोने वाले लोग हैं, क्योंकि उसने हमें बढ़ाया है, उसने हमें सिखाया है, उसने हमें चलाना है, और उसने हमें और ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उसने हाथ पकड़कर हमें ज़मीन पर अपने खादम ठहराया है, और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हम उसके कलाम को सुनाएंगे और ज़िंदगियों को उसके पास लेकर आएंगे। पैसे के लिए खिदमत नहीं की। जब ये चर्च बना, मैंने कहा हमें क्या पता है, मुझे क्या पता है मैं किस साल में उठा ली जाऊँ। गाड़ी, चर्च, पैसा, अकाउंट सब कुछ इधर है। मैंने खुदा से मांगा तो सिर्फ खुदा की बादशाहत को मांगा है। दुनिया की सारी चीज़ें वो खुद प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उसने कहा मैं यहोवा यरी हूँ और मैं सब कुछ। भाई आपको जो कुछ ज़रूरत होगा खुदा ठीक वक्त में आपको फराहम करेगा, मगर उसकी मोहब्बत में बढ़े, उसमें कायम रहे। आगे बड़ी प्यारी बातें थी। वो कहता है क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हो और भी ज्यादा होती जाए। कौन सी?
ईमान, नेकी, सब्र, परहेजगारी, दीनदारी, मोहब्बत। वो कहता अगर ये तुम में है, सब में होंगी यकीनन, लेकिन वो कहता अब इसको क्या करो, हैं? थोड़ा ऊंची बोलो, इसको क्या करो? नहीं, जिन्नी है उन्हीं ही रखो। यहाँ पर वो कह रहा है ब्रादराना उल्फत पर मोहब्बत, कहता है बढ़ाओ इसको। आप जिस दर्जे में हो जरा अगले दर्जे में आओ। आप 8-9 महीने तो आपने इस साल के गुजार लिए हैं, ये गुजर गए हैं, अब ये अगला साल शुरू हो जाएगा। हम कितना बड़े हैं, हम बस न्यू ईयर पर देखते हैं दरख्त की जड़ पर कुहाड़ा रखा हुआ है, अब वो काट डाला जाएगा, एक कलाम हुंदा है। फिर कहते ने पुरानी चीजें ये वाले चल रहे हैं, देखो वो सब ते पहले महीने च ते नवीं ते बाकी महीनों च फिर पुरानी है। पुरानी शख्सियत फिर उभर आई, फिर वही नफरत, वही चीजें, वही बोलना, वही बोलचाल, वही रवैया, वही किरदार, वही मिजाज, सब कुछ वही। एक महीने में हमने बड़ी दुआएं की, क्रिसमस से मैंने तौबा कर ली है, नया साल है मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी है, मेरे अंदर से पुरानी चीजें चली गई हैं, 2 महीने बाद फिर आ गई ते हुण नवा महीना पता नहीं किन्ने दे अंदर किन्नियां आ गई। कुछ नया हुआ, आपकी जिंदगी बदली, आपका कैरेक्टर बदला, आपका रवैया बदला, आपके पास जो बरकत थी क्या उसका लेवल बढ़ा, क्या आप रूहानी तौर पर अगले दर्जे में गए, क्या आपके रूहानी कान खुले। आपकी हेल्प किसी को निजात नहीं दे सकती, मगर अगर आप किसी की मुलाकात यीशु से करवा देते हैं और वो मज़हबों पर झुकना शुरू कर देता है तो वो उसकी निजात ठहर जाता है। आमीन। ये भी एक बढ़ोतरी है, ये भी बढ़ना है कि आप बढ़े और आपके साथ आपके ख़ानदान के लोग भी, आपकी फैमिली के लोग भी, आपके साथ कलीसिया के लोग भी, आपके इलाके के लोग भी बढ़े और मसीह की मोहब्बत बढ़ते बढ़ते मुल्क पाकिस्तान के सारे शहरों को अपनी लपेट में ले ले। ऐसी कहने सानू मिल गई है तो साढ़े लिए काफ़ी है, बाकी जान बाकी जाए पहाड़ में। हमें मोहब्बत मिल गई है, हम कामिल हो जाएं, हम रास्तबाज हो जाएं, हम खुदा के पसंदीदा हो जाएं, हम बादशाहत में शामिल हो जाएं, बाकी मेरे साथ वाले जहाँ मर्जी जाएं। हाँ, मैं तो इर्द गिर्द वाले वास्ते दुआ शुरू की हुई है, हाँ, कि खुदा हम बदले, जिंदगियों के अंदर निजात का काम हो। ये नहीं है कि हम किसी काम में पीछे हैं, अगर यहाँ खुदा काम कर रहा है तो मेरी ये दिली ख्वाहिश है खुदा इस घर में भी मज़हब कायम कर दे। आमीन। खुदा उससे अगले में भी कर दे, खुदा उससे अगले में भी कर दे, खुदा उससे अगले में भी करे। खुदा कॉलोनी के अंदर जितने घर हैं खुदा उनको बरकत दे, मज़हब कायम हो, लोग बढ़े, तरक्की करें और मेरे यीशु का नाम ज़मीन पर इज्जत और जलाल पाए। मेरे घर के बच्चे बढ़ेंगे तो मेरे यीशु के नाम को जलाल मिलेगा। मेरी कॉलोनी के बच्चे बढ़ेंगे मसीहत में तो किसको जलाल मिलेगा? अगर मेरी रावलपिंडी शहर के अंदर हमारे बच्चे मसीह में बढ़ेंगे तो किसके नाम को जलाल मिलेगा? अपनी सोच को वसी करना है। और वो कहता है बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बांटना शुरू करें। कितनों में मसीह की मोहब्बत है? आज तो अपनी फैमिली के किसी एक मैंबर चो ट्रांसफ़र करो, उसके साथ मोहब्बत का इजहार करें। जिसके साथ आप बोलते नहीं हैं, जिसके पास बैठना पसंद नहीं करते, जिनके दरमियान में लड़ाई झगड़े हैं, माफ़ करें। क्या करें? मैनू नहीं पता कि मसला है। बाद चो कई लोग कहते उन्हें दसिया होना है, भैन सैरा गई सी, उन्हें दसिया ही होना। ये भैन सैरा को गया सी, इन्हें जाके ज़रूर मेरे बारे में गल की होगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ना तो मैं इस कॉन्सेप्ट से आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर खुदा के रूह की हदायत से आपको कह रही हूँ कि अपने दरमियान, अपने रिश्तों के दरमियान में क्या करें? मोहब्बत को बढ़ाएं। जिनसे आपकी दुश्मनी हो चुकी है, जिनसे आपको नफरत हो चुकी है, जिनके साथ आपके लड़ाई झगड़े हैं, बोलचाल बंद ने,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। यही मसीहत है। चर्च आना मसीहत नहीं है, संडे को सिर्फ वर्शिप करना मसीहत नहीं है, कलाम सुनना मसीहत नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी में से मसीह के काम जाहिर हों, दूसरों के दरमियान में मोहब्बत को बांटें, सुलह को कायम करें, शफकत के साथ पेश आएं, सब्र के साथ काम लें और मसीह की मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बढ़ाते चले जाएं। आमीन। ऐ हुण तुहानूं बड़ा औखा लगना है ताली बजाना, क्योंकि कई विच नाराज बैठे तेल नहीं लगदा। हुण गल इत्थों गुजर रही है, जबकि गुजरनी इत्थों चाहिदी है कि गल ते चंगी कीती जा रही है। हुण कईयां ने कान ही बंद कर लिया, कईयां ने मूँह दा जाविया ही बिगाड़ लिया। वो मैं दस रही हूँ, जिन्हां नूं माफ़ करना करो तो होर सख्त हो गई है। उन्हां दे चेहरिਆਂ ਦੀ सख्ती दस रही है कि उन्हां माफ़, पर यह बुरी गल है ना, नहीं करना। मज़ा तो भी कोई तुहाडे तो नाराज़ है, तुसी नहीं भी हो, वो नाराज़ है, उठ के जफ्फी पा लो हैं। जिन जी मीटिंग खत्म होए कुछ ना वेखो, खैर इंसल्ट हुई, उसने आपकी बेइज्जती की, आपकी जिंदगी पर उसने दाग लगाया, आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ी। आज मसीह की मोहब्बत में जैसे उसने सलीब पर कुर्बान कर दिया, जिसने उसके मुंह पर थूका उसने उसको भी गले लगाया, जिसने उसके हाथों में कील ठोके, सुनिएगा, जिसने उसके हाथों में कील ठोके उसने उसको भी, जिसने उसके सर पर कांटों का ताज रखा उसने उसको भी। वो कहता मोहब्बत बढ़ाओ, तो सिर्फ ये सुन के ही तो ना जाओ। मैं कहती हूँ मेरे चर्च के लोग जब कलाम सुने तो उस कलाम पर खड़े हो जाए ताकि अगला दरवाजा खुल जाए। पिछले नु सुन के तो सुन हो जाना है, अमल करना कोई नहीं, तो फिर कलाम सुनान का भी फायदा ते सुनन का भी फायदा। सुनियो जरा, मुकाशफा की किताब में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का, जरा उच्ची बोले, इस नबूवत की किताब का और इसमें जो कुछ लिखा है उस पर, जी बोलो, जो कुछ इसमें लिखा है उस पर क्या है? अमल करोगे, माफ करोगे, मोहब्बत बढ़ाओगे। कितने हैं जो मोहब्बत बढ़ाएंगे? हाथ चुको जरा दलेरी देना, और चुको नहीं तो खुदा ने चुक लेना, उन्हें कहना झूठे बैठे। कितने हैं जो मोहब्बत बढ़ाएंगे? एक हाथ उठाएं। कितने हैं जो दूसरों को माफ कर देंगे, चाहे उसने आपके लिए कुछ भी कहा? दूसरा हाथ उठाएं। ए लवो जी ना वादे लेना नहीं, पहला हाथों चुकन जड़े मोहब्बत बढ़ाना चाहते, खुदा दा कलाम सुनिया पूरा करोगे, हाथ चुको जरा, तानू पक्का करांगी मैं। अंदर ही खोलते रहंदे जी जेड़े कहंदे ने असीं मोहब्बत बढ़ावांगे, उच्चा हाथ चुको, थल्ले नहीं बाजी, ताड़ा हाथ थल्ले उत्ते करो जरा, ऊपर 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 और ऊपर जितना कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं। कोणी दे विच ए ना हो जाए, उत्ते करो, चुको उत्ते, तानू रब पूछे। अच्छा दूसरा हुण ओ चुकन जेड़े वाकई अज दिलों माफ करनगे और चर्च के अंदर ही गले मिल के जाणगे। चुको बई, कलाम नूं पूरा करन दा वादा कर रहे जी, हाथ चुको। गले किन्ने मिलणगे? बहन नाजिया के लिए ताली बजाए, और ना चुक के फिर थल्ले कीते, फिर ही बजाए। ये छोटी छोटी बातें इंजॉय भी करना चाहिए। कलाम को पूरा कर देखे, अगर मैं सख्त सुनाऊं तुसी होर सख्त हो जाओ, फायदा तो कोई नहीं। कलाम च लिखा नरम जुबान हड्डी को, कईयां दे गुस्से दी रूह टुट गई। हालेलुया, हालेलुया, गुस्से दी रूह टुट गई है और मोहब्बत बढ़ेगी। हालेलुया, मोहब्बत बढ़ेगी। कुछ भाई भी हंस रहे हैं, तो जेड़े मियां बीवी नाराज ने वो भी जरूर सुलह करें हैं, जो नाराज है वो भी जरूर सुलह करें। हालेलुया। वो कहते हैं बरादराना उल्फत पर मोहब्बत, बरादराना उल्फत पर मोहब्बत, बरादराना उल्फत पर मोहब्बत, मोहब्बत बढ़ाते जाओ। नफरत फैलाने वाले तो बहुत है, उन्हें तेनू ऐ क्या है, उन्हें तेनू ऐ क्या है, हाँ इस तरह से तो करने वाले बहुत हैं। मगर कितनी अच्छी बात है हम के उन्होंने जो भी कहा है आप उनसे मोहब्बत करें। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों मेरे पास कोई आए गेस्ट, क्या देना मेरे लिए बड़ा कुछ, पर मैं क्या खुदा कलाम तो मैंने दिखता मोहब्बत बढ़ाओ। तो मैं उठी और मैंने उनको कहा
सबसे पहले तो जो मेरी सख्ती है मैं ख़त्म करती हूँ, आमीन। और मैं आपको माफ़ करती हूँ। और मैंने गले लगाया, मुंह चूम के मैंने कहा खुदा आपको बरकत दे। ये अगर मैं प्रीच कर रही हूँ तो मैंने इसको अमली तौर पर लिया पहले, क्योंकि वो कहते हैं बरादराना उल्फत पर क्या बढ़ाओ, ते मोहब्बत बढ़ानी। आज जिन्होंने कुछ भी कहा माफ़ कर, आज का पैगाम है ये घंटा लंघ गया साढ़ा। अगली बार दसांगी भेत बड़े खुदा ने खोले ने अगे भी, मगर वो कहता है अगर ये बातें तुम में मौजूद और भी ज्यादा होती जाए तो तुमको मसीह की पहचान में वे फल, फिर वो कहते तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। हमारी पहचान रूह के फल है, हमारी पहचान दीनदारी है, हमारी पहचान परहेजगारी है, हमारी पहचान ईमानदारी है, हमारी पहचान नेकी है, हमारी पहचान खुदा की मोहब्बत है जो सबसे अफजल है और मोहब्बत को सवाल नहीं है। आमीन।